أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مصاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم، پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو کہ ایک اونٹ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان جاہلیت کا کر رہے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شيء، کہتے تھے کیا اس معاملے میں بھی ہمارا کوئی اختیار ہے؟ یعنی یہ آیت بھی جنگ احد کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات ہوئی ہے کہ اس غم کے بعد ان پر ایک امن نازل کیا گیا جو کہ اونٹ کی صورت میں تھی، یعنی مسلمانوں پر جنگ احد میں پے در پے صدمے ہوئے، ہم پیچھے پڑ چکے نا، غم کے بعد غم ملے تھے انہیں، آپ سے کا شہید ہونا، کافروں کا پلٹ آنا، یہ سارے ہم نے پیچھے پڑھ لیے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان صدموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں ہی موجود مسلمانوں کے اوپر اونٹ طاری کر دی کہ وہ کھڑے تھے تلواروں کو ہاتھ میں لے کر، لیکن انہیں فیل کیا ہوتا تھا کہ جیسے وہ نیند میں یعنی اونگ رہے ہوں، اور وہ اونگ کیا تھی؟ اللہ نے خود اس کو کیا کہا؟ امن، تمہارے لیے امن اس میں تھا، یعنی جیسے ہی تم میں اونگ آئی اس سے تمہیں اطمینان ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کہ ہم پر اونگ طاری ہو گئی جبکہ ہم احد کے دن اپنی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ عالم یہ تھا کہ میرے ہاتھ میں میری تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی، میں اسے اٹھا لیتا اور وہ پھر گر جاتی تھی اور پھر میں اسے اٹھا لیتا، یعنی اونگ ایسے تھی کہ بار بار اونگنے کی وجہ سے جو میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، اونگ آتی ہے تو ہاتھ میں کچھ ہو تو وہ لڑکھنے لگ جاتا ہے، تو میں بار بار اسے اٹھا رہا تھا۔ لیکن اس اونگ کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں نا بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی سی اونگ کے بعد انسان جب دوبارہ فریش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اب وہ تھکاوٹ ہمارے اوپر نہیں رہی۔ تو اس اونگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھ دیا تھا؟ امن اور اطمینان رکھ دیا تھا۔ دوسری حدیث میں انس بیان کرتے ہیں کہ اونگ کی وجہ سے ابو طلحہ کے ہاتھ سے 2 یا 3 مرتبہ تلوار گری تھی۔ اور پھر اسی طرح ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے احد کے دن اپنا سر بلند کیا تو کیا دیکھتا ہوں؟ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنے سر کو ڈھال کے نیچے جھکائے ہوئے ہے۔ اللہ کے اس قول کے مطابق ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں اشارہ کیا کہ تمہارے لیے میں نے امن اور اطمینان اس اونگ میں رکھ دی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میدان جنگ کے اندر یہ اونگ آنا کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے امن اور اطمینان۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا معجزے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے معجزہ ہوا، یہ کام ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح سے ہو گیا۔ تو یہ میدان جنگ کا معجزہ تھا کہ دشمنوں کے روب کی وجہ سے، دشمنوں کے پلٹ آنے کی وجہ سے، غم کے اوپر غم ملنے کی وجہ سے وہ بڑے بے چین سے تھے، تو اونگ آنے کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے امن بھی رکھا تھا اور اطمینان بھی رکھا تھا۔ جب وہ اونگ سے بیدار ہوئے تو دوبارہ کیسے ہو گئے؟ بالکل پرفیکٹ ہو گئے، یعنی ان کے دلوں میں خوف کی بجائے اب امن اور اطمینان تھا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ، اس کے حوالے سے آتا ہے انفسهم، اس سے مراد منافقین ہے کہ ایسے حالات میں ان کو اپنی جانوں کی ہی فکر تھی کہ اگر ہم اس جہاد کے لیے نہ نکلتے تو آج ہم مارے نہ جاتے۔ تو یہ کن کا ذہن ہوتا ہے؟ منافقین کا۔ میدان قتال میں ہو یا گھر میں ہو، موت کا جب وقت لکھا ہے اس نے تو آنی ہے۔ اگر میدان قتال میں بھی موت نہیں لکھی تو واپس گھر آ جائیں گے، کیونکہ موت کا وقت ہی نہیں لکھا تھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میدان قتال میں ہی موت آتی ہے۔ اس کے آپ ایگزامپل لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے لوہے محفوظ میں ہر ایک کی موت کا وقت بھی لکھ دیا اور موت کے ساتھ اس کا جنت میں جانا اور اس کا جہنم میں جانا بھی لکھ دیا۔ اگر آج ہم فلسطین کے اندر حالات سن رہے ہیں کہ بہت سی شہادتیں ہو رہی ہیں، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، بڑے بھی شہید ہو رہے ہیں، اسرائیل ان کو تباہ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت کے مرتبے پہ فائز کرنا تھا، ان کی موت کا وقت یہی تھا۔ یعنی دل خون کے آنسو روئے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اگر فلسطین میں نہ ہوتے تو نہ مارے جاتے، موت تو لکھی تھی ان کی، وہ کیسے نہ مارے جاتے۔ اور اگر جہاد میں اللہ کے راستے میں موت آئی ہے تو سب سے بڑھ کر موت عزت والی یہی تو موت ہے۔
तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन से कहा कि तुम जो कहते हो कि अगर हम वहां ना जाते तो फिर अपने घरों में होते तो हम बच जाते, तो ये मुनाफिकीन की सोच है, मुसलमान की, मोमिन की ये सोच नहीं है। उसे पता है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, वो बाजार में भी आ सकती है, वो नमाज के अंदर भी आ सकती है, वो जिहाद में भी आ सकती है, वो दुनिया के कामों के साथ भी आ सकती है, वो नाचने गाने वाली औरत नाच गाते हुए भी आ सकती है, वो अल्लाह के दीन की इबादत करने वाली औरत उसको दीन के ऊपर भी आ सकती है। मौत का जो वक्त मुकर्रर है वो वहीं आएगी, और जो जगह मुकर्रर है वो भी उसी जगह पर आएगी। मौत खुद उसको उस जगह पर लेकर जाएगी। जैसा कि अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि एक शख्स था, उसने कहा कि अभी आपके पास कौन है? उसने कहा इजराइल आए हैं। तो कहा मैं तो इजराइल से बहुत खौफ महसूस कर रहा हूँ, आप मुझे दूर दराज इलाके में पहुंचा दें। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि मुझे दूर दराज इलाके में पहुंचवा दे। अल्लाह ने उनको हवा उनकी ताबियत की हुई थी, उन्होंने उसको वहां से दूर पहुंचवा दिया, और फरिश्ते ने जब उसको उस जगह पर देखा जहाँ पे उसकी रूह कब्ज करनी थी तो बड़े हैरान हुए कि अभी तो तुम फलां जगह थे, इस जगह कैसे पहुंच गए? तो उसने कहा कि मुझे आपका खौफ यहाँ तक ले आया, यानी मौत खुद मौत की जगह पर उसको लेकर आई। तो ये नहीं सोचा जा सकता कि हम कहें कि वो फलां जगह ना जाता तो उससे मौत ना आती। मौत खुद उस जगह की लिखी हुई थी तो उसको खुद ही लेकर गए। इसी तरह कितने पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो घर में होते हुए अचानक बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में चले जाते हैं, और हॉस्पिटल में उनको डेथ हो जाती है। असल में उनकी मौत का वक्त और जगह जो थी वही थी, अल्लाह उनको ले गया, वरना बीमार तो कई अरसों से होते हैं, लेकिन मौत लिखी है तो वो वहीं पे आती है। तो ये सारी चीजें एक ईमान वाले के लिए बहुत जरूरी हैं कि उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि फलां जगह ना जाता तो मौत ना आती, फलां डॉक्टर के पास ना जाता तो मौत ना आती। मौत तो लिखी हुई, जिहाद के मैदान में ना जाता तो मौत ना आती, वहां भी लिखी हुई थी। और दूसरे ग्रोह जो यानी मुनाफिकीन का था, उन्हें अपनी जानों की फिक्र के साथ साथ दूसरी कोई फिक्र नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो कौम सबसे बुज़दिल, सबसे ज्यादा मरऊब और हक की हिमायत से सबसे ज्यादा गुरेज करने वाली थी। मुनाफिक किसको कहा जा रहा है? जो दुनिया की लज्जतों से मरऊब हो जाए और मौत को अपने लिए नापसंद करना शुरू कर दे तो उसी को मुनाफिक कहा जाता है। यानी उसे क्या है, मैं अभी जिंदा रहूं, अभी मैंने जीना है, और मैंने जी के क्या करना है, मैंने मरना नहीं है, मुझे क्यों कहते हैं मरो। मुनाफिकीन मरना नहीं चाहता, और एक मोमिन अपनी मौत को जिहाद के रास्तों में जाकर शहादत की मौत को ढूंढते हुए अल्लाह के यहाँ बहुत मजीद मर्तबे पर फाइज हो जाता है। तो ये किससे मरगूब हुआ? मुनाफिक दुनिया से मरगूब हो गया, और मोमिन किससे मरगूब होता है? जन्नत से। यज़ुन्नूना बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़ुन्नल जाहिलिया, वो ये गुमान कर रहे थे कि दीन इस्लाम और उसके हामिलीन बस अब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। यानी जैसा कि अब फलस्तीन के अंदर रोज शहादतें हो रही हैं, तो कुछ लोगों का ज़हन क्या होता है कि सारे के सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम ये गुमान क्यों कर रहे हो कि सारे ही तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने लौह महफूज में जिसको शहादत का रुतबा देना है वही शहीद होगा, बाकी सब लौट आएंगे। तो यहाँ भी तुम ये जो कह रहे हो कि सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और मुसलमानों की कभी किसी ने मदद नहीं की, नहीं। अल्लाह ने जिसको शहादत के मर्तबे पे फाइज करना, उनको शहीद करवा के फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद भी करनी है, और फिर अल्लाह ताला ने दावत दीन को परवान भी चढ़ाना है, हक को परवान भी चढ़ाना है। लेकिन अल्लाह ने जो जन्नत शहीदों के लिए बनाई है वो शहीद भी तो इकट्ठे करने, और जिसको शहीद की मौत आ जाए वो तो बहुत ही अफजल मौत अल्लाह के पास पहुंच गया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैदान ओहद में थे, मुनाफिकीन ये गुमान कर रहे थे कि अब सारे के सारे मुसलमान तबाह बर्बाद हो जाएंगे, अपने घरों की तरफ वापस लौट कर नहीं आएंगे। तो क्या ऐसा हुआ था? नहीं। 70 शहीद हुए, बाकी कितने? सारे के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस लौट आए, और वापस आके उन्होंने क्या किया? दावत दीन को बुलंद भी किया और ईमान को तक़वियत भी दी। यक़ूलूना लौ काना लना मिनल अम्रि शैउम मा क़ुतिलना हाहुना, मुनाफिकीन ने अपने सोए ज़न का इजहार करते हुए कहा कि हम लोगों की तो बात चलती नहीं, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा भी था कि मदीने में रहकर लड़ाई करो, वहां ना जाओ, लेकिन नबी ने हमारी बात नहीं सुनी। अगर ये बारी बात मान लेते, मदीना में रहकर लड़ते, तो आज इनका ये हाल ना होता। तो मुनाफिकीन मरने से डरते हुए ये बातें कर रहा है, जबकि अल्लाह ने जो लिखा है वो तो होकर ही रहना।
ऐसे ही है ना कि जो अल्लाह ने लौह महफूज में लिख दिया है वो तो वजूद होना है, वो तो सारा कुछ होना है। तो ये मुनाफिकीन की बातें हैं कि अगर मदीने में रहते तो ये सारा कुछ ना होता। गज़वा ओहद के लिए मदीने से निकलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे लिए थे, तो मशवरे के अंदर उनको ये मशवरा मुनाफिकीन की तरफ से मिला था कि शहर के अंदर रहकर दिफा करते हैं, शहर से बाहर जाकर नहीं लड़ते। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने मशवरा लेने के बाद फैसला किया तो शहर से बाहर जाकर लड़ने का फैसला किया। तो जब इसे ये खबर मिली मुनाफिकीन को कि खजरज के बहुत से लोग कत्ल कर दिए गए हैं, तो उन्होंने खजरज के सरदारों से कहा कि तुम अगर हमारी बात मान लेते, तुम मदीने में ठहर जाते तो तुम्हें कभी मौत ना आती। तो ये इसकी मेन वजह क्या थी? लोगों में बदजनी फैलाना, लोगों में ये गुमान पैदा करना कि मरोगे तो किताल के रास्ते में मरोगे वरना तुम्हें मौत नहीं आई। यानी अब लोगों ने क्या समझा कि किताल में जाने से मौत आती है, घरों में नहीं आती, इसलिए किताल में कोई जाने के लिए तैयार भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला यही बात उन्हें बता रहे हैं कि ये किसकी साजिशें थी? मुनाफिकीन की, जिसने लोगों में साजिशें फैलाई कि अब अगर कोई सी माँ को कह दिया जाए कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में वक्फ करो, तो वो क्या कहती है? नहीं भाई नहीं, मेरा बेटा तो वहां पे मारा जाए। ये किसकी साजिश थी? मुनाफिकीन की। वो अपनी साजिश में कामयाब हो चुके। जबकि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मौत तुम्हें खुद उस किताल के मैदानों में अगर होगी तो लेकर जाएगी, तुम्हें किसी सूरत में उससे फरार हासिल नहीं कर सकते। तो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए अगर तुम अपने घरों में भी होते तो तब भी जिन लोगों पर कत्ल होना लिखा जा चुका था, यानी कहाँ लिखा जा चुका था? लोहे महफूज में। और ये क्या है? अल्लाह के पास एक किताब है जो अल्लाह ताला ने सब इंसानों के पैदा होने से पहले, सारी कायनात को बनाने से पहले लोहे महफूज में हर चीज लिख दी। मेरे बारे में लिख दिया, मैं कितने साल जिंदा रहूंगी, क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, फलां दिन मैंने क्या करना है, फलां दिन मैं क्या करूंगी, ये सब कुछ हर बंदे के बारे में लिखा जा चुका है। अब अल्लाह ताला यही कह रहा है कि नबी आप इनसे कह दीजिए अगर आप अपने घरों में भी होते तो तब भी जिन लोगों का कत्ल होना लिखा जा चुका था लोहे महफूज में, तो वो अपने पलटने की जगहों पर जरूर निकल आते। यानी अगर जिहाद के जरिए ना निकलते तो किसी न किसी काम की गर्ज से उस जगह पर चले जाते, क्योंकि मौत तो उसे उसी जगह पर लिखी थी और उसी जगह पर आनी है। तो ये तुम्हारी अपनी बातें हैं। वलियब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम वलियमहिस मा फी कुलूबिकुम, ताकि अल्लाह उसे आजमा ले जो तुम्हारे सीनों में है और ताकि उसे खालिज कर दे जो तुम्हारे दिलों में है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला सीने की बातों को जानने वाला है। यानी अब हम ये सारी बातें समझ चुके हैं कि मौत सिर्फ मैदान किताल में नहीं आती, मौत अपने मुकर्रर वक्त पर और मुकर्रर जगह पर आती है। ना ही किसी के साथ लड़ने से मौत आती है, ना घरों में बैठकर मौत से बचा जा सकता है। तो ये तो एक अटल हकीकत है, जितने अरसे तक आपने इस दुनिया में रहना है रहेंगे, उसके बाद आखिरकार क्या है? मौत ही है। तो 100 साल जी ले तो फिर भी क्या है? उसके लिए मौत ही है। तो ऐसा हुआ है 100 साल का बुजुर्ग है, अब वो कहे कि अभी भी जिए, तो क्या उसके घर वाले चाहते हैं कि वो जिए? वो कहते हैं अब जाए, बहुत तंग कर रहा है, बहुत ये हो रहा है, अपनी जिंदगी में भी मोहताजी भरी हुई है, चारपाइयों पे पड़ा है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग भी कहते हैं बस अब इसके लिए मौत ही ज्यादा बेहतर है। तो अल्लाह तबारक व तआला यही हमें समझाना चाहता है कि मौत अपने वक्त पर और अपनी जगह पर आएगी, मैदान किताल में कभी नहीं आएगी। जिसकी लिखी होगी उसी को ही मैदान किताल में आएगी, और जिसकी लिखी हुई है वो क्या है? तुम में से सबसे अफजल वही है जो अल्लाह के रास्ते में जिसको मौत आ जाए। यानी अब जंग गज़वा ओहद के अंदर अगर अल्लाह ताला चाहता तो बगैर किसी मामले के भी मुसलमानों को फतह दे सकता था, लेकिन ये जो चंद मुसीबतें उनके ऊपर दो चार हुए, जिसमें आजमाइश में डाले गए कि पहले फतह पा रहे थे, अचानक पीछे से काफिरों ने हमला किया, फिर वो दोबारा पसपा हो गए। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए आजमाइश थी, देखना चाहता था कि तुम्हारे सीने में है क्या। निगल दिया ना उन्होंने, जब अल्लाह ने उन्हें फतह ना दी तो उन्होंने अपने सीनों की बातों को निगला। कैसे निकाला? कि अगर घरों में होते तो मौत ना आती, अगर ये जिहाद के लिए ना निकलते तो मौत ना आती, अगर ये मदीने से बाहर निकल कर ना लड़ते तो मौत ना आती। तो इनके सीनों में ये बातें थी। अल्लाह ये जाहिर करना चाहता था कि तुम में से साफ
सच्चा और पक्का मुसलमान कौन है और जिसके दिल में निफाक है तो वो कौन है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इस आजमाइश से, यानी मैंने पसपा किया, नबी के दंदान मुबारक शहीद करवाए, मुसलमानों में से कई को शहादतें दी, तो ये सारी वजह किस लिए थी? सिर्फ तुम्हें आजमाना था कि तुम्हारे दिलों में कितना ईमान है। सेम आप इसको फलस्तीन के साथ आज ले जाए। फलस्तीन वाले जो शहीद हो रहे हैं वो तो बड़ी जिम्मा होकर अल्लाह के यहाँ दर्जे पा रहे हैं। अल्लाह किसको आजमा रहा है? हमें आजमा रहा है, ठीक है ना। शहीद होने वाले तो मर्तबा पा गए और बड़ी खुशबुएं हैं, वहां मुश्किल की खुशबुएं फैली हुई हैं, वो जन्नत के रास्ते उनके लिए खोले गए हैं, अल्लाह उनका इस्तकबाल फरिश्तों से करवा रहा है। वो तो अजीम मंजिल की तरफ चले गए, मौत तो आनी थी लेकिन वो अजीम मंजिल की तरफ चले गए। अब इस तमाम फलस्तीन के हालात से अल्लाह आजमा किनको रहा है? हम मुसलमानों को आजमा रहा है कि हमारे सीनों में क्या है। क्या अभी भी हम अपने फलस्तीनी लोगों के लिए ये बात नहीं सोच सकते कि हमें क्या करना चाहिए? अभी भी हम कहें कि हम घरों में बैठे रहेंगे तो मौत नहीं आएगी। यानी अल्लाह इन आजमाइशों से क्या निकालना चाहता है? फी सुदूरिकुम, तुम्हारे सीनों की बातों को। और जब तुम्हारे सीनों से निकलेगा, वो तो उनका मामला है, हमारा मामला नहीं है, हम तो बस अपने घरों में महफूज हैं। अगर ऐसी बातें निकली तो ये क्या हो गया? हमने इस चीज को नापसंद किया जो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बहुत अफजल है। और जब हमने इसको नापसंद किया तो हम क्या हुए? मुनाफिक और निफाक के एक शोबे पर मर गए। तो अल्लाह ताला हमारे सीनों के साथ में से निकलने वाले जो अल्फाज हों वो यही हों, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी गज़ा, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी फलस्तीन। अल्लाह मुजाहिदीन फलस्तीन के लोगों की, मुसलमानों की, गज़ा के लोगों की, मुसलमानों की मदद फरमा। ये नहीं है कि हाँ उनके साथ जो हो रहा है वो तो उनका मामला, हमारा थोड़ा। नहीं, हमें अपना किरदार पेश करना है। वो कैसे है? हम कितना खा लेते हैं और कितनी पॉकेट मनी इस्तेमाल कर लेते हैं। और आप अंदाजा करें कि हम अपनी पॉकेट मनी का जो नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे। हम सबको लेज बड़ा पसंद है ना, उसके बगैर गुजारा नहीं है। क्या है? एक लेज है और एक कोक की बोतल हो तो मजा ही आ जाता है। ये क्या है? ये सिर्फ चस्का है। ये हमारे सीनों में ये बात है कि हम इसको नहीं छोड़ सकते। जब हम ये बात करेंगे ना कि हम इसको नहीं छोड़ सकते तो हमारे सीने में क्या है? निकल आया ना कि हमें इस्राइली मसनूआत बड़ी पसंद है और इसका प्रॉफिट वो हमारे मुसलमानों के ऊपर मिसाइल की सूरत में गिरा रहा है, तो हम इसमें साथ हैं। तो अल्लाह ताला कहीं हमारी आजमाइश ना कर रहा है, छोड़ दें। इसलिए अपने मुसलमानों से मोहब्बत की सूरत में कि ये जितना पसंद था आज के बाद मुझे उतना ही ना पसंद है। क्यों? क्योंकि अल्लाह मुझे आजमा रहा है कि देखो तो सही इसने क्या किया। आप जहां तक मुमकिन हो सकता है कर सकते हैं, मसनूआत का बाइकाट करें, दुआओं का एहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उनके हक में बेहतरी मांगे। और उसके साथ साथ जो आपकी पॉकेट मनी से आपका ताउन जा सकता है वो आप करें। अल्लाह आपकी आजमाइश कर रहा है, उस आजमाइश में आप पूरे उतर के दिखाएं। अगर नहीं उतरे तो अल्लाह ताला ने देख लेना है कि हम में से मुनाफिक कौन है। अल्लाह हमें मुनाफिकों से बचाए। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमअनी बेशक वो लोग जो तुम में से उस दिन पीठ फेर गए जब दो जमातें आपस में लड़ी, शैतान ने उन्हें बाज अमाल ही की वजह से फिसलाया था। यानी यहाँ पर उहुद में मुसलमानों से जो लग़्ज़िश हुई थी पहाड़ को छोड़ने की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र करते हुए फरमाया कि जब दो जमातें आपस में लड़ पड़ी तो उनसे जो उस दिन पीठ फेर गए, इस चीज से पीठ फेर गए, अल्लाह के नबी की बात मानने से उन्होंने इनकार किया और वहां से पहाड़ी से उतर गए। तो अल्लाह ताला उनके बारे में क्या कह रहा है कि उनके बाज अमाल ऐसे थे जिसकी वजह से शैतान उन्हें फिसलाने में कामयाब हो गया। पहाड़ से इसलिए उतरे थे कि सामने माले गनीमत था, काफिर भाग चुके थे मैदान छोड़ के, मुसलमानों को फतह मिल चुकी थी, काफिरों का माल जो था वो छोड़ के भाग रहे थे। बाकी जो मुसलमान नीचे मैदान में थे उन्होंने माले गनीमत को इकट्ठा करना शुरू किया था। तो पहाड़ी पर जो खड़े थे 50 का दस्ता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया था कि किसी भी सूरत में मेरे हुक्म के बगैर इस जगह को नहीं छोड़ना। उन्होंने उस जगह को छोड़ दी। वो जगह जो थी वो बैग को कवर कर रही थी, यानी जहां से काफिर वापस जा रहे थे वो पलट के उस रास्ते से आ सकते थे दोबारा मुसलमानों के। अब मेरे पीछे से आके कोई हमला कर दे मुझे पता नहीं चलेगा। तो ये मुसलमानों के मैदान में लड़ने का बैक साइड थी जिसको कवर करने के लिए अल्लाह के नबी ने 50 का दस्ता अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरगर्दगी में खड़ा किया था। अब उन्होंने जब देखा कि काफिर तो भाग गए हैं, मुसलमान फतह पा चुके हैं, तो उन्होंने कहा हमें भी माले गनीमत जाकर समेटना चाहिए।
तो ये किसने फिसलाया? अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतान, शैतान ने उसे फिसलाया। वो अल्लाह के नबी की बात अगर नहीं मानी तो किस वजह से नहीं मानी थी? आगे अल्लाह ताला ने बता दिया बिबाज़ि मा कसबू, इससे पहले उनसे नेक अमाल में कमियां कुताहियां हुई थी, जिस वजह से शैतान उन्हें फिसलाने में कामयाब हो गया। अब आपको मैं इस बात को ऐसे समझाती हूँ। मिसाल के तौर पर आज आपने सुबह के अस्कार नहीं किए, ठीक है ना, शैतान आपके साथ है। जब आपने सुबह के अस्कार नहीं किए, आपने नेक अमाल में कोताही की ना, आपके लिए लाजिम है ना सुबह के अस्कार। आपने जब नेक अमल में कोताही कर ली है, अब क्या होगा? सारा दिन शैतान आपको फिसलाने में कामयाब हो जाएगा। क्यों? आप शैतान की शर से बचे ही नहीं। तो उनसे भी जंगे ओहद में आने से पहले बाज़ अमाल ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से शैतान ने फिसलाने में कामयाब हो गए। यानी अगर आप सुबह के अस्कार करेंगे तो शाम तक शैतान आपको नहीं फिसला सकता, और जब आप शाम के अस्कार करेंगे तो सुबह तक आपको शैतान नहीं फिसला सकता। जब आपने अपने अमाल में कमी कुताही की तो शैतान आपको फिसला देगा, और जब शैतान फिसलाएगा तो फिर ऐसे काम हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर शैतान इंसान को फिसला दे और वो गलती कर बैठे तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वो मुनाफिक हो गए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने अलबत्ता उन्हें क्या किया? माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि उनसे गलती हुई, लग़्ज़िश हुई, और उन्हें एहसास हुआ कि जब हमसे गलती हुई तो उन्होंने क्या किया? तौबा कर ली। जब हमें भी पता चले कि आज फलां अस्कार ना करने की वजह से शैतान ने मुझे फिसलाया है और मुझसे ये गलती हो चुकी है, और नमाज में ज़ोहर की नहीं पढ़ सकी, सुस्ती पैदा कर दी शैतान ने, और उसके लिए मैं ना उठ सकी और नमाज को छोड़ दी, तो मुझे फौरन अपने अमाल की खबर करते हुए तौबा करनी चाहिए। और जब मैं तौबा करूंगी तो अल्लाह ताला मुझे मेरी लग़्ज़िश के ऊपर माफ कर देगा। अगर किसी ने शैतान के फिसलाने पर गलती करने के बावजूद तौबा नहीं की, उस गलती को गलती माना ही नहीं है, तो अल्लाह ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। ये कौन है फिर? ये मुनाफिक। मोमिन की पहचान है गलती हो जाएगी, गलती होने के बाद उसे एहसास होगा, एहसास होने के बाद वो तौबा करेगा, और फिर अल्लाह ताला कहता है वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला ने यही कहा कि आप भी उन्हें माफ कर दें। क्यों? क्योंकि उनके एक गलती हो गई, अब उन्होंने अपनी गलती के ऊपर सुधारने की कोशिश की है, तो अल्लाह भी माफ कर रहा है। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है और बुर्दबार भी है। यानी अब देख लें, गलती के बाद माफी जरूर मांगा करें। गलतियां हो जाएंगी, गलतियों में इंसान अपने आप को बचाते हुए भी गलती कर बैठेगा, लेकिन गलती के बाद तौबा जरूर करे ताकि अल्लाह उसे माफ कर दे। उनके दिलों में क्या था? इखलास था, दिल उनके मुनाफिक नहीं हुए थे, इसलिए अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू व क़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू, ऐ लोगों जो ईमान ले आए हो उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने कुफ्र किया और अपने भाइयों के बारे में कहा कि जब उन्होंने जमीन में सफर किया या वो लड़ने वाले थे, यानी अगर वो सफर करने के लिए, लड़ने के लिए निकले थे तो वो ये कहते थे कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मरते, ना कत्ल किए जाते, ताकि अल्लाह उससे उनके दिलों में हसरत बना दे। और अल्लाह ताला क्या करता है? युहयी व युमीत, जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला जो कुछ भी तुम कर रहे हो देखने वाला है। यानी इस आयत में भी अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को कुफार के इस बातिल अकीदे की, फासिद अकीदे के बारे में मुशाबहत इख्तियार करने से मना कर रहा है कि आपने मुनाफिकीन का शेवा नहीं अपनाना, कुफार के इस फासिद अकीदे की तरफ नहीं आना। जब आप जो उनकी बात से मालूम होता था, जो उन्होंने अपने भाइयों से कही थी कि अगर तुम सफर में ना निकलते और जंगों में ना जाते लड़ने के लिए तो कभी भी ना मरते। तो यकीन की बात है, कुफार के फासिद अकीदे की, मुनाफिकीन के बातिल अकीदे की बात है। तो अल्लाह ताला मोमिनों से मना कर रहा है कि तुम इस बात के साथ अपनी बात ना जोड़ो कि फलां अगर फलां जगह ना जाता तो कभी भी ना मरता है। हम कह सकते हैं ऐसे, हमारा ईमान है ना इंशाल्लाह कि जहां जाएगा मौत लिखी होगी तो आएगी, नहीं लिखी तो वापस आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो अल्लाह ताला कह रहा है तुम अपने आप को इनके साथ ना मिलाओ, तुम्हारा अकीदा ऐसा ना हो। अगर वो इन सफरों और जंगों को इख्तियार ना करते तो इस मौत की सूरत हाल से दुचार ना होते। ये अकीदा बुज़दिली की बुनियाद है। यानी ये कह देना
जिन मुल्कों में काफिर मुसलमानों के साथ लड़ रहा है, उन मुल्कों के हवाले से ये कह देना कि वो उस मुल्क में ना होते, हमारे मुल्क में होते तो बच जाते। तो ये क्या है? फासिद अकीदा है, और ये क्या है? बुज़दिली की बुनियाद है। ये अकीदा हमारा नहीं होना चाहिए। इसके बरक्स जब ये अकीदा हो कि मौत और जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के। अल्लाह ने क्या कहा है? मोमिन का अकीदा क्या हो? वल्लाहु युहयी व युमीत, कि अल्लाह ही जिंदगी देता है और अल्लाह ही मौत देता है। तो आप मुसलमानों का अकीदा यही होना चाहिए कि मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है। तो इससे इंसान के अंदर क्या आता है? अज़्म भी आता है, हौसला भी आता है। ऐसे ही है ना, मुजाहिदीन के बारे में आता है कि जब वो मुजाहिदीन कुफार के सामने लड़ते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मैदान किताल में बिल्कुल सामने जाके लड़ते हैं। उनका जहन ये होता है, उनका अकीदा ये होता है कि अगर कोई गोली मेरे नाम की बनी है तो मुझे लगेगी, अगर कोई गोली मेरे नाम की नहीं बनी तो वो मुझे छू ही नहीं सकेगी। तो अल्लाह ताला यही कह रहा है कि जब तुम्हारे जहन में ये बात हो कि मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, फिर तुम बुज़दिल नहीं बनोगे, फिर तुम डट के मुकाबला करोगे, अज़्म तुम्हारे अंदर आएगा, हौसला तुम्हारे अंदर आएगा, लड़ने का शौक पैदा होगा कि मौत तो कहीं भी आ सकती है, तो जब आनी है तो अल्लाह के रास्ते में आ जाए, तो इससे बेहतर मौत और कोई भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर और ज्यादा महबूब है। देख लें, अब ताकतवर मोमिन कब होगा? जब उसका अकीदा क्या हो? अल्लाह ही जिंदगी देता है, अल्लाह ही मौत देता है। तो ये उसका अकीदा क्या है? उसे ताकतवर बना रहा है। और ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से, अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमा रहे हैं, ज्यादा बेहतर भी है और अल्लाह को महबूब भी है, और हर एक में खैर है। जो चीज तुम्हें नफा दे उसकी ख्वाहिश करो और अल्लाह से मदद तलब करो। यानी जो चीज तुम्हें फायदा दे रही है उसकी ख्वाहिश करो, जो चीज फायदा ही नहीं दे रही उसकी ख्वाहिश करके क्या करना? आपको दुनिया फायदा दे रही है? नहीं दे रही। अगर आपको नहीं दे रही तो आप उसकी ख्वाहिश करके क्या करें? अल्लाह मुझे भी जिंदा रहा, कभी जिंदा रहा, कभी जिंदा रहा। आपको पता है शहीद होने के बाद फजाइल हैं, ठीक है ना? तो आप इसकी ख्वाहिश रख सकते हैं कि अल्लाह मुझे भी शहादत के रुतबे पर फाइज कर देना, मुझे भी शहीद के लोगों में शामिल कर देना। यानी उस चीज की ख्वाहिश करें जिसमें आपको फायदा हो। मौत तो आनी ही आनी है, तो यूं क्यों ना मौत करें? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह हमें अपने रास्ते में शहादत की मौत नसीब फरमा। तो जो चीज आपको पसंद है उसकी ख्वाहिश करें। आपको पसंद है सजदे की मौत, सजदे की मौत मांगे। आपको पसंद दुनिया नहीं आनी चाहिए। जो चीज पसंद हो वो फायदे वाली हो। दुनिया से क्या फायदा मिलना है? आखिर तो मरना ही है। आपके पास जमीनें हैं, जायदादें हैं, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, आप मरे, आपके साथ कब्र में दफन होंगे? नहीं होंगे। फिर इन चीजों का क्या फायदा? कब्र में आपके साथ क्या जाएगा? नेक अमल, उसका फायदा है ना। फिर उसके लिए कोशिश करें ताकि हमारे पास नेक अमल ज्यादा हो, ये फायदा है हमारे लिए। और जब इनका फायदा तुम्हें पहुंचे तो उसकी तलब भी करो, मदद भी हासिल करो, और अल्लाह के सामने आजिज और दरमांदा होकर न बैठ जाओ। और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंच जाए तो ये ना कहा करो कि अगर मैं ऐसा और ऐसा करता तो ये मुसीबत मुझे ना पहुंचती। ये मोमिन के अल्फाज नहीं है। तकलीफ पहुंचती है, चोट पहुंच जाती है, किसी के घर जाते हैं, कोई बातें ताने पेश कर देता है, हम कहते हैं अगर मैं ऐसे ना करती तो ऐसा ना हो। या फिर आपने दीन के रास्ते को चुनाव किया, आप दीन के रास्ते पर चलते हुए नमाजी भी बन गए, शरीफ पर्दा भी कर लिया, आपने दीन को लाइक किया, पसंद किया। अब लोगों ने आपको क्या किया? तकालीफ दी, मुसीबतें पहुंचाई, बातें पहुंचाई। फिर आपके जहन में ये बात आ गई कि अगर मैं ये सारे दीन के काम ना करती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। ये मोमिन की पहचान नहीं है। मोमिन ये नहीं सोचता। मोमिन क्या करता है? मुसीबत आने पर भी कहता है कि अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह ने जो चाहा मेरे लिए किया। इसमें भी अल्लाह की तरफ से मेरे लिए हिकमत है, यानी मुसीबत में भी अल्लाह की तरफ से हिकमत है। आप सूरत नूर पढ़ेंगे तो सूरत नूर में जो हज़रत आयशा पर तहमत लगाई गई थी उसके बारे से भी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे लिए इसमें शर नहीं बल्कि खैर है। तो आप देख लें, एक मुसीबत पहुंची थी उनके ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा? इसमें भी तुम्हारे लिए क्या है? खैर है। तो आप जान लें कि अगर आपको कोई तकलीफ पहुंच रही है तो उसमें भी आपको फायदा है, ठीक है ना? उसमें भी आपको फायदा है। और अगर तकलीफ नहीं पहुंची तो तब भी आपको फायदा ही फायदा है। वलन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाऊन। और बिलाशुबा यकीनन अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाओ या फौत हो जाओ तो यकीनन अल्लाह की तरफ से थोड़ी सी बख्शिश और रहमत उससे कहीं बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ने खुद ही बता दिया
کہ موت تو ہر صورت آنی ہی آنی ہے، لیکن اگر موت ایسی آئے جس کے بعد انسان کی مغفرت بھی ہو جائے اور اللہ کی رحمت بھی اس سے مل جائے، تو یہ دنیا کے مالوں میں سے سب سے بہترین مال ہے جو اسے نصیب ہو گیا۔ ایک انسان ساری عمر کھپاتا ہے دنیا کے مال کو جمع کرنے کے لیے، تو اس سے زیادہ بہتر اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت اس سے مل جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ساری زندگی اپنی محنت کے اوپر، کمانے کے اوپر، جمع پونجی کے اوپر لگا دی، وہ ساری زندگی ایک طرف رکھ لو، اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے نکلا اور شہید ہو گیا، وہ اس کے لیے افضل۔ کتنی دیر کی بات ہے، اللہ کے نبی کے دور میں ایک شخص ایسے ہی کفار کے میدان بھی سجا ہوا تھا، مسلمانوں کا بھی سجا ہوا تھا۔ ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے نبی اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور مسلمانوں کے ساتھ لڑوں کافروں کے ساتھ تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں ملے گی۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی دین کا کام نہیں کیا، ابھی صرف کلمہ پڑھنے کے بعد میدان کتاب میں لڑنے کے لیے کھڑا ہوا، شہید ہو گیا۔ شہید ہوا تو اسے کیا مل گیا؟ اللہ کی مغفرت بھی مل گئی اور اللہ کی رحمت بھی مل گئی۔ تو شہید کو یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ عام انسان جو موت مرتا ہے تو اس کے لیے کسی کو تو چانسز ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مل جائیں، لیکن ہر انسان کے لیے چانسز نہیں ہے کہ اسے مغفرت بھی مل جائے اللہ کی اور رحمت بھی مل جائے، لیکن شہید کے لیے پرفیکٹ ہے یہ بات کہ اسے مغفرت بھی مل جاتی ہے اور اللہ کی رحمت بھی مل جاتی ہے۔ ایک بہت اچھا واقعہ ہے اس کے ریلیٹڈ کہ ماں نے 17 سال کے بچے کو اپنے جہاد کے لیے بھیجا، تو جو جہاد کا امیر تھا اس نے کہا کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ میں اس کو کیسے لے جاؤں؟ تو اس نے کہا آپ نے مجھے واپس نہیں بھیجنا، میں نے قتال کرنا ہے اور قتال میں سب سے اگلی صف میں کھڑے ہونا ہے اور میں نے اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خیر اس کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اس کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، میں صرف شارٹ کٹ آپ کو صرف بات بتانا چاہ رہی ہوں۔ وہ ساتھ لے کر چل پڑے۔ راستے میں ایک دن پہلے یعنی میدان قتال اگلے دن تھا جہاں پہ پہنچنا تھا، اس سے ایک دن پہلے راستے میں پڑاؤ کیا، سب لوگوں کو روزہ تھا، افطاری کا ٹائم تھا، تو اس شخص نے کہا، بچے نے کہا کہ میں آپ سب کے لیے افطاری بناتا ہوں۔ تو امیر نے کہا جاؤ بناؤ۔ اب افطاری بنانے کے لیے اس نے چولہے یعنی وہ آگ جلائی، لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کے اوپر برتن رکھا پکنے کے لیے۔ اس کے بعد اس نے اسے اونگ آ گئی، جیسے میدان احد میں اونگ آئی ہے، ٹھیک ہے نا، اسے اونگ آئی اور نیند میں چلا گیا، اسے بھول گیا۔ جب نیند آتی ہے تو پتہ تو نہیں ہوتا کہ ہم نے کھانا بنانا۔ اب وہ امیر لشکر کا امیر کہتا ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا کھانا تیار نہیں ہوا، تو میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کتنی دیر ہے، میں آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو سویا ہوا ہے اور میں کھانا تیار کرنا شروع کرتا ہوں، کھانا بھی تیار کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اسے دیکھ رہا ہوں، وہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، بڑے ہی پیارے انداز میں اس کے چہرے پہ اسمائل ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ اونچی آواز سے بھی یعنی جیسے انسان ہنستا ہے ویسے ہی خواب میں ہنس رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے امیر لشکر سے کہا ہٹیے میں کھانا بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کھانا تو تیار ہو گیا، میں تب تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک تم مجھے اپنے ہنسنے کی وجہ نہیں بتاؤ گے، تم نیند میں تھے، مجھے لگتا ہے غالباً تم کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا چھوڑیے رہنے دیجیے، یہ میرا معاملہ ہے۔ کہا نہیں میں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے کہ تم کیا دیکھ رہے تھے جس نے تمہیں ہنسنے اور مسکرانے پہ مجبور کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، جنت ہے اور اتنی خوبصورت جنت ہے سونے سے بنی ہوئی، اور اس کے اندر غازیہ نام کی ایک عورت ہے جس کے بارے میں حوریں مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہ تمہاری بیگم ہے، بیوی ہے، جو تم اس سے مل لو۔ میں آگے بڑھتا ہوں، جنت کے آگے قدم بڑھاتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ نہیں، غازیہ کہتی ہے ہماری ملاقات کا دن آج فکس نہیں ہے، کل ظہر کے بعد ہماری تم سے ملاقات ہوگی۔ کہتے میں جنت کو دیکھ کے ہنس رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں اور اپنی بیوی کی باتوں کے اوپر مسکرا رہا تھا، یہی معاملہ تھا، اس سے زیادہ اور کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اگلے دن کہتے ہیں میدان قتال سجا، میدان قتال میں ظہر سے پہلے ہی میدان قتال سارا معاملہ کلیئر ہو گیا اور یہ اس راستے میں یعنی اس قتال کے میدان میں شہید ہوئے اور ابھی زندہ تھے، یعنی کافی چوٹیں پہنچی، کافی تیر لگے، جسم کا ایک ایک ٹور کہتے ہیں کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا، لیکن لشکر کے امیر کو طلب کر رہے تھے، وصیت کرنا چاہ رہے تھے۔ وصیت یہ تھی کہ یہ میری قمیض میری ماں کو جا کے دینا تاکہ میری ماں کو یقین ہو جائے کہ میری ماں کہ میرے بیٹے نے واقعی اللہ کے راستے میں اپنی جان کو شہید کیا، کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا پیچھے نہیں ہٹنا، شہید ہونا ہے۔ تو باہر یہ وصیت کر رہے تھے اور لشکر کے امیر سے کہتے ہیں واللہ میرا جو خواب کل میں نے دیکھا تھا، آپ کو بتایا تھا، میں اپنے سامنے اس کو موجود پا رہا ہوں، میرے نزدیک جنت لائی گئی ہے اور میں غازیہ کو اپنی آنکھوں سے اب دیکھ رہا ہوں۔ یہ باتیں کی اور پھر کلمہ پڑھتے ہی اللہ کو پیارے ہو۔ حقیقت میں جب شہید کو
शहीद की मौत का वक्त होता है, उसे तकलीफ मिलती है, सारा कुछ मिलता है, तो उससे तकलीफ जो होती है, वो जो गोली लगे, वो जो बम लगे, कुछ भी लगा है, उसे फील कितना होता है, हदीस का मफहूम है, उसे चूंटी के काटने जितना दर्द सिर्फ महसूस होता है, और उसके सामने जन्नत जाहिर कर दी जाती है, यानी उसका जन्नत का मकाम उसे दिखाया जाता है, वो जन्नत को देखते हुए सारा कुछ भूल जाता है। आपने शुरू सूरह बकरा में एक हदीस पढ़ी थी कि इतना गरीब इंसान जिसे दुनिया में अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिया होगा, तो उसे जन्नत का एक होता जो लाएगा, मुसीबतों में उसकी जिंदगी गुजरी होगी, जन्नत का एक होता देखने के बाद अल्लाह ताला से वापस बुलाएगा, उससे पूछेगा बताओ तुमने दुनिया में कोई मुसीबत देखी थी? वो कहेगा अल्लाह तेरी जन्नत के एक होते ने मुझे दुनिया का हर गम भुला दिया। अब जब शहीद के सामने जन्नत झामने की जाती है, उसका मकसद क्या होता है कि वो अल्लाह के रास्ते में पाने वाली तकलीफों को सारी भुला दिया जाते हैं। उसे पता ही नहीं होता कि मेरे किस हिस्से में कौन सी तकलीफ है, ये क्या है। वो तो जन्नत में जाने के लिए जो मंजर उसको दिखाया जाता है, जन्नत की जो खूबसूरती उसे दिखाई जाती है, वो अपना सारे गम सारी मुसीबतें भूल जाता है। तो जन्नत इतनी खूबसूरत है कि जो इंसान एक बार सिर्फ एक होता कितनी देर का होता है, ऐसे गए और वापस आ गए, जाएगा वो सारी दुनिया के गम भूल जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मर जाए कि उसने ना कभी अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया हो और ना ही कभी उसने जिहाद करने का ख्याल आया हो उसके दिल में, तो उसकी मौत निफाक के एक शोबे पर होगी। यानी या तो शहादत नहीं पा सकते, जिहाद के मैदान में नहीं जा सकते, तो दिल में क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए कि अल्लाह तो मुझे मौका देगा तो मैं जरूर तेरे रास्ते में शहीद होंगी। अगर ये चीज दिल में नहीं है तो फिर क्या है? मुनाफिकीन के एक शोबे पर, निफाक के एक शोबे पर आप मरेंगे। वलइमुत्तुम औ कुतिलतुम इलल्लाहि तुहशरून, और बिलशुबा अगर तुम मर जाओ या कत्ल किए जाओ तो यकीनन तुम्हें अल्लाह की तरफ भी लुटाए जाओगे। यानी अब आप देख लें, आम मरे या शहादत की मौत मरे, जाएंगे कहाँ? अल्लाह की। लेकिन शहीद की मौत के साथ आपने क्या सुना? मगफिरत भी मिल गई, रहमत भी मिल गई, और शहीद की मौत को अल्लाह ताला ने सबसे अफजल मौत भी गिरदान दिया। अब अल्लाह ताला कहता है दोनों सूरतों में तुम अल्लाह के पास ही लौटोगे, और जब अल्लाह पूछ ले के बताओ कैसे जिंदगी बसर करके आयो, क्या जवाब देंगे? शहीद से ये सवाल नहीं किया जाए। शहीद से हाफिज कुरान जो अमल करने वाला होगा, हाफिज कुरान सिर्फ याद करना नहीं, हाफिज कुरान के साथ कुरान पर अमल करने वाले को भी कहा जाएगा पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी लफ्ज होगा वहीं तेरा मकाम होगा। तो सिर्फ हाफिज कुरान नहीं बनना, इसलिए आपके लिए इस क्लास का इस्तेमाल किया है कि हाफिज कुरान के साथ अमल होगा तो तब आप जन्नत में बगैर हिसाब किताब के आप भी जा सकते हैं। अमल बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ हिफ्ज जरूरी नहीं है। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिद की मिसाल उस क़याम करने वाले इंसान और रोजा रखने वाले की सी है जो ना तो अपनी नमाज से गाफिल हो, यानी मुसलसल नफल पढ़ता रहे, ऐसा कोई कर सकता है? लेकिन अल्लाह के राह में शहीद होने वाला तो शहीद हो सकता है ना। तो उसका दर्जा, यानी अगर हम कहें हम अल्लाह के रास्ते में शहीद नहीं होना चाहते, उसके मुकाबले में कोई और नेकी हमें बताई जाए, हम करें ताकि उसके मुकाबिल पहुंच जाए, वही दर्जा हमें मिल जाए, तो उसका क्या बताया जा रहा है कि मुसलसल नमाज पढ़े, नमाज से गाफिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए शहीद के मकाम को कोई अमल पहुंच ही नहीं सकता। दूसरा लफ्ज बताया कि रोजा रखने वाले किसी, यानी एक नमाज पढ़ने वाले किसी है कि जो कभी नमाज से गाफिल ना हो, और एक रोजा रखने वाला कि रोजा रखता रहे, रोजाना रोजा हो, मुसलसल पूरी जिंदगी 60 साल जिंदगी है, 60 साल जिंदगी में रोजे रखे, ऐसा हो सकता है? 1 महीने के रोजे रखते हैं तो निढाल हो जाते हैं। तो आप देख लें, हालांकि उसमें औरत के लिए अल्लाह ताला ने सहूलत भी रखी है, उसके बावजूद भी बाज़ का थोड़ी थकावट और सुस्ती और निढाली सी फील हो रही होती है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि शहीद वाला मकाम जो है वो किसी भी सूरत में जिहाद वाले मकाम को कोई भी अमल नहीं पहुंच सकता। हदीस को मुकम्मल करते हैं, यानी उस जिहाद करने वाले की मिसाल रोजा रखने वाले किसी या नमाज पढ़ने वाले किसी है जो नमाज ना छोड़े और ना ही रोजा छोड़े, हत्ता कि वो अजर व गनीमत लेकर वापस अपने घर पलट आए, या उसकी मौत आ जाए या वो जन्नत में दाखिल हो जाए। यानी अगर मैं अपने एक बेटे को अल्लाह के रास्ते में भेज रही हूँ, वो 10 दिन के लिए रहा, 1 महीने के लिए रहा, उसके बाद इधर दूसरा बेटा मेरा है, उसको मैंने क्या किया, चल भाई तू भी जिहाद पे गया है, अमल ले रहा है, तो उसके अमल जैसा अमल कर, तो अब क्या कर, मुसलसल रोजा रख ले।
اور جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا تب تک وہ مسلسل روزہ رکھتا رہے تو پھر اس کے درجے تک پہنچ سکتا ہے، یا نماز پڑھتا رہے اس سے غافل نہ ہو، رات بھی نہ سوئے دن بھی نہ سوئے مسلسل نماز پڑھتا رہے، پھر اس کے عمل کے برابر پہنچ سکتا ہے، یا وہ شہید ہو جائے یا وہ واپس آ جائے تب وہ دونوں کا عمل برابر ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں کسی صورت میں بھی جہاد کے عمل جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں میری پھوپھی ربی کا بیٹا حارثہ غزوہ بدر کے دن جاسوسی کے لیے نکلا۔ اب آپ دیکھ لیں کچھ ایجنٹ ایسے بھی بھیجے جاتے ہیں، ان کا روپ بدل دیا جاتا ہے اور انہیں ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے۔ آپ کو بھی بعض اوقات ایسے راستوں میں نظر آتے ہوں گے ملنگ سے فقیر سے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ فقیر ہے ملنگ ہے، نہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ بھارت کا امریکہ کا ایجنٹ ہو، جاسوس ہو۔ جاسوس ایسی صورتوں میں جاتے ہیں، اور جب جاسوس بھیجے جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ اتنا بڑا عہدے والا بندے کو وہاں کیا بنا کر بھیجا جاتا ہے، جمع دار بنا کر بھی بھیجا جاتا ہے کہ جو تم اس کے کیمپ کے اندر جمع داری کرنا اور ساری معلومات اکٹھی کرنا۔ جاسوس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے ساری معلومات اکٹھی کرنی ہوتی ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ کب وہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیسے وہ حملہ کریں گے، کیا کیا کریں گے، تو یہ جاسوس کا کام ہوتا ہے۔ تو انس کہتے ہیں میری پھوپھی ربی کا بیٹا حارثہ بھی جاسوسی کے لیے نکلا تھا، قتال کے لیے نہیں نکلا تھا، انہیں تیر لگ گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب ان کی ماں یعنی میری پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اگر تم میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کا ارادہ کرتی ہوں، اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حارثہ، بات یہ ہے کہ جنتیں تو بے شمار ہیں، تیرا بیٹا حارثہ جنت الفردوس میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب اگر وہ جاسوسی کے لیے نکلا تو وہ بھی تو مجاہدین کے کام میں سے نکلا، اگر اس راستے میں سے تیر لگ گیا تو وہ تو شہید ہو گیا، اور شہید ہونے کے بعد وہ کہاں گیا؟ جنت الفردوس۔ اللہ کے نبی نے بھی ہمیں یہی دعا سکھائی ہے کہ جب بھی تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔